Good morning, students. Let's start the theory of the covalent bonds. We have various concepts about the covalent bond like polarity, bond length, bond order, dipole moment, overlapping, hybridization. All the concept deals the covalent bond. Okay, dears, but no one the single theory explain how the covalent bond is formed and what are the properties of the covalent molecule. Therefore, the theories are required to explain the formation of covalent bond and to explain the properties of the covalent molecule. Okay, so there are two theories are explained on the basis of the quantum mechanical theory, quantum mechanical principle. The quantum mechanical principles are the principle based on the electromagnetic radiations like Heisenberg principle, de Broglie principles, okay dear, Bohr model, etc. Okay dear. So now the first theory was the valence bond theory, VBT, and second theory is the molecular orbital theory, MOT. Valence bond theory. The valence bond theory was developed by Hitler and London in 1927 and further modified by the Pauling and Slater in 1931. Okay dear. Now, postulates and main points of the theory are as first is the covalent bond is formed by the overlapping of atom or atomic orbitals of the valency cell of the two atom. जो atoms आपके combine होते हैं उनकी valency cell में जो orbitals होती हैं वो आपस में overlap करती हैं तो covalent bond form होता है. Okay dear. So according to the valence bond theory, first postulate of the theory. Now second is the orbital having the unpaired electrons of opposite spin overlap with each other. Second postulate है कि जब orbitals होती हैं जो opposite spin वाली होती हैं वही overlap करती हैं. Okay dears. As it next postulate है a result of overlapping the electron density is maximum between the two atoms in the bonding force is electrostatic attraction between the two nuclei. जो nuclei होते हैं जो भी atoms होते हैं two atoms होते हैं वो कंबाइन करते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है ओवरलैपिंग से वो दोनों के मिड में ज़्यादा होती है. ओके डियर, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी. ये न्यूक्लियस इसका यहाँ, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसी से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके डियर्स. Okay, now greater is the overlapping, smaller will be the bond length, more will be the bond energy and stability of the bond will be also high. वैसे ही आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होगा और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी. ओके डियर्स. नाउ the extent of overlapping depend upon the nature of orbitals involved in the overlapping. Okay, and nature of overlapping और orbital की nature पर depend करता है. Okay, the bond strength in the order is as PP overlap. जो PP bond form होता है वो stronger than the SP and SS. एंड पीपी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द ओवरलैपिंग कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग. ओके डियर. तो जो पीपी ओवरलैपिंग होगी, जो एक्सियल ओवरलैपिंग पीपी होती है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती है देन द एसपी, देन पीपी आपका एसएस. ओके डियर्स. So these are the postulate of the VBT. Last postulate is the paired of the electrons. Paired of the electron of the valency cell can also take part in the bond formation if they can unpaired by the excitation. ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जहाँ पे पेयर्ड अनपेयर्ड हैं वो तो करता ही करता है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर सकता है. व्हेन
जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये अनपेयर्ड जो वैकेंट ऑर्बिट होती हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हमने बताया था कि एस इलेक्ट्रॉन्स और पी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में हमारे डी वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाते हैं और आवर की ओवरलैपिंग होती थी। तो सिमिलरली ये कह रहा है लास्ट स्टेटमेंट कि आपके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो भी आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती हैं और whenever the electrons get excited, okay, from lower energy state to the higher energy state. Okay, now the example of formation of the H2 molecule according to the VBT के अनुसार H2 molecule का formation कैसे होता है ये अब हम देखेंगे। H2 molecule is the simplest covalent molecule which is formed by the two hydrogen atom. The hydrogen atom has consists only one electron and one proton. The hydrogen हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है डियर स्टूडेंट। हाइड्रोजन के कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, दैट इज़ हाइड्रोजन। तो नाउ कंसीडर द टू हाइड्रोजन एटम्स A and B overlapping to each other having the nuclei Na and Nb, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं इनके Ea और Eb है। ओके, ये आप यूज कर लिया ना। फॉलोइंग अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेज बिटवीन द एटम्स, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आएंगे वो इस तरीके होंगे। Na के बीच में फोर्स अट्रैक्शन हो सकता है या Nb और Eb के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेम एटम का न्यूक्लियाई और सेम एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आपस में अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये भी हो सकता है, सेकेंड टाइप की प्रोबेबिलिटी है कि एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो Na और Eb में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या Nb और Ea में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नाउ सिमिलरली रिपल्सन फोर्स भी हो सकती हैं। रिपल्सन फोर्स अराइजेज टू द एटम्स। ई में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्सन होगा और आपका न्यूक्लियस के बीच में होगा रिपल्सन, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हैं। अगर न्यूक्लियस पास में आएंगे तो रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पास में आ रहे हैं तो भी रिपल्सन होगा। ओके डियर्स, द अट्रैक्शन फोर्स टेंड टू द ब्रिंग टू एटम्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या करते हैं कि इन एटम्स को पास लाना चाहते हैं। ओके, वाइल द रिपल्सन फोर्स क्या होगा, इसको दूर करेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन के बराबर होगा। इन दिस कंडीशन टू हाइड्रोजन एटम्स आर सेड टू बी बॉन्डेड एंड द स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड हैविंग द बॉन्ड लेंथ है 74 pm एंड द बॉन्ड एनर्जी इज द 435.8 किलो जूल। ओके डियर, इस कंडीशन पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जिसकी बॉन्ड लेंथ 74 pm होगी और एनर्जी आपकी 435.8 किलो जूल होगी। ओके डियर, सो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बिहाफ ऑफ द VBT। ओके डियर, so it is the VBT. Now let's see the MOT, molecular orbital theory. Molecular orbital theory was proposed by F. Hund and R.S. Mulliken in 1932. कुछ VBT जो थी, कुछ कंसेप्ट को, कुछ प्रॉपर्टीज़ को मॉलिक्यूल को, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन कंसेप्ट या उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उन जो ड्रॉबैक्स रह गए थे उन ड्रॉबैक्स को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी आई, मॉलिकुलर ऑर्बिटल theory. According to the theory, when two atoms having the unpaired electron approach to either a covalent molecule is formed. वही सेम पॉस्टुलेट है जो उसका था कि अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आती हैं पास और ओवरलैप करती हैं, ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके डियर, नाउ सेकंड पॉस्टुलेट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी एंड सेफ overlap to each other and form the molecular orbital by the linear combination of atomic orbital. Linear combination of atomic orbitals like एक कंसेप्ट है जिसमें जो मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें भी मिक्सिंग होती है, ओवरलैपिंग में भी मिक्सिंग होती है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में, उनको ओवरकम करने के लिए न्यू कंसेप्ट आया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके डियर्स, ओके नाउ
Third postulate of the MOT, the AOs lose their identity in the molecule. जो MOT कहती है कि जब एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल में फिर एटम को नहीं हम ढूंढ पाएंगे कि एटम कहाँ गया, एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है। लेकिन VBT ऐसा नहीं था, VBT इसमें कहने में असफल थी कि वो कह रही थी कि मॉलिक्यूल में भी एटम अपना इंडिविजुअल रहता है, मॉलिक्यूल में एटम की इंडिविजुअलिटी रहती है, बट अकॉर्डिंग टू MOT में कि एटम्स की इंडिविजुअलिटी नहीं रहती है, अब वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है। ओके डियर, तो नेक्स्ट है पोस्टुलेट ऑफ द MOT, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टेकन पार्ट इन द LCAO। ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मीन्स जितनी मिक्स होती हैं ऑर्बिटल उतनी ही बनती हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया, वो ये LCO भी कह रहा है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करती हैं LCO में उतनी ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं। ओके डियर, हाइब्रिडाइजेशन में क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही थी और एटॉमिक ऑर्बिटल ही बन रही थी, लेकिन आपके LCO में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बन रही हैं। ओके डियर, नाउ एमोज फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव EOs। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती हैं वो जो जहाँ से वो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल से बनी हैं उस एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होती हैं इन द एनर्जी एंड शेप आल्सो। ओके, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ AOs इज SPDF while the representation of molecular orbital are as sigma, pi, sigma stic, pi stic and delta, etc. Okay dear, the MOs formed follow all the rules and regulations of AOs like above principle, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स प्रिंसिपल। मतलब MO जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अबव प्रिंसिपल के अनुसार होगा, उनमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो करेंगे और हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल भी फॉलो करेंगी। ओके डियर, नेक्स्ट पोस्टुलेट है द एटम्स फॉर्म्ड आर ऑफ टू, जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड आर ऑफ टू टाइप। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, सेकंड इज़ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आपकी एडिशन कॉम्बिनेशन से बनती हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव या सब्सट्रैक्शन कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ओके डियर्स, तो जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती हैं ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं। नाउ द ऑल द पोस्टुलेट ऑफ द MOT आर एस्टिमेटेड एज, इनको ग्राफिकली और ग्राफेट एज इस तरीके से ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एटम आपका एक एटम आया वो आपसे दूसरे एटम से आपका कंबाइन हो रहा है और LCA के थ्रू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज दैट A और B एटम आपस में कंबाइन किए और AB मॉलिक्यूल बना। अगर A एटम से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही हैं और B एटम से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रही हैं तो आपकी जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगी वो 4 होंगी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली 1 एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज फर्स्ट एस। ओके डियर, तो ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो SPDF से रिप्रेजेंट की जाती हैं। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो सिग्मा स्टिक, पाई स्टिक, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाती हैं। जो वो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं वो मोनोसेंट्रिक होती हैं, सेम एनर्जी एंड सेम ज्योमेट्री को रखती हैं। बट जो MOs होती हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती हैं, ये पॉलीसेंट्रिक होती हैं और डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी की होती हैं। Okay dear, so these are the difference between the atomic orbital or molecular orbitals. Now molecular orbital formed are of two types, means 50% आपकी बॉन्डिंग होंगी, 50% बॉन्डिंग होंगी और 50% एंटी बॉन्डिंग होंगी। जितनी भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आपकी फॉर्म होंगी उसमें से आधी बॉन्डिंग होंगी और आधी एंटी बॉन्डिंग होंगी। बॉन्डिंग की एनर्जी लेस देन द एटॉमिक ऑर्बिटल
और जो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो लेस देन द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से कंपैरिजन किया जाता है, आपस में नहीं कंपैरिजन किया जाता है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं ये एडिशन कॉम्बिनेशन से बनती हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होती हैं वो सब्सट्रैक्शन से बनती हैं, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ओके, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टेक पाई स्टेक। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होती हैं उनकी वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं। ओके डियर, तो दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ द वीबीटी एंड एमओटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमओटी के एप्लीकेशन को आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके डियर्स, इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एमओटी का। ये आपकी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित आएगा, और कंपटीशन में तो ज़्यादातर अगर केमिकल बॉन्डिंग से कोई क्वेश्चन मिलता है तो लगभग 70% एमओटी का ही होता है, और रेस्ट 30% में आपका ओवरलैपिंग या हाइब्रिडाइजेशन या आपका डाइपोल मोमेंट एक्सेट्रा इनसे आएगा। ओके डियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।